Hello Sonam, am I audible? Yes, ma'am, but not visible. Good morning, ma'am. Good morning. कैसे हो आप? Ma'am, good. How are you? मैं भी ठीक हूँ. So are you prepared for this mock interview? Yes, ma'am, little bit. Okay. I will. So can we start? Yes, ma'am. Okay. So first of all, your name is Sonam, right? Sonam Joshi. Yes, yes, ma'am. What is the meaning of your name? Ma'am, my name meaning is gift, Gift. blessing, or yes, ma'am. Okay. So you are the blessing for your parents. Yes, ma'am. Okay. So tell me about your family members. Ma'am, my father is a retired army man. My mother is a homemaker. I have two elder siblings. Okay. What are your siblings doing? My elder brother is a chemical engineer. My sister is married right now. She is teaching in the private schools. Private school. Yes, ma'am. Okay. So give me a short introduction about yourself. Okay, ma'am. Ma'am, my name is Sonam Joshi. I am from Rishikesh, Uttarakhand. I have completed my schooling from Kendra Vidyalaya IDPL. I am graduated from PG College Rishikesh. Okay. So, what is your subject in your last studies? Ma'am, during graduation, Yeah, ma'am, I have physics, maths, and geology. physics, math, geology. Then you doing PG also, right? Yes, ma'am. Okay. In which year you passed your PG? Ma'am, in 2019. 2019. Yes, ma'am. Okay. So after that, you are continuously preparing for banking sector or any other thing? Ma'am, I am preparing for banking sector from 2019 onwards. Okay. So it's approx 5 years, I can say. Yes, ma'am. So you are totally dedicated to banking sector only for 5 years. No, ma'am, I'm giving the exams, but I am also giving tuitions to the students also for my own expenditures. And otherwise, I am also preparing and giving tuitions also. Okay, so this is your first interview for the banking? Yes, ma'am. First interview. Okay. So Sonam, why you choose this banking sector? You have many option like other exams, other government exam, and why you choose only banking sector? Ma'am, initially because initially I started the banking sector because banking sector exams or exams held very frequently. Initially, when I don't have that much knowledge about banking sector, but right now I want to join banking sector because it gives us we can serve public, we can help in our economics also in growing our economics. Okay. So there is many other option for the girls like UPSC in which girls got some reservation also. So why you like only banking just for economic or society reason? मैम बैंकिंग जो होता है ना हमें अच्छी ग्रोथ देता है और बहुत जल्दी ग्रोथ देता है और मैम अच्छा सेक्टर है इसमें एग्जाम्स भी फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं तो मैम बेनिफिशियल है इसलिए मैंने बैंकिंग सेक्टर चूज किया पब्लिक डीलिंग भी होती है इसमें तो हमारे लिए बेनिफिशियल है Okay. So कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि मैं पब्लिक से अच्छे से डील कर सकती हूँ okay. So Sonam, what is your strength? मैम माई स्ट्रेंथ इज आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स Okay. Do you have any experience that your strength is showing, like you have a good communication skills? Yes, ma'am. During graduation, I participated in many competitions. In speeches, also I participated in dancing. I also participated. So I think, and I did hosting also. Hosting, you mean anchoring, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So your father is a retired army person, huh? Right? In your biodata it is written. Okay. Yes, So how does your father experience influence your career choice? मैम माय फादर इज अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन तो मेरे पापा ने एक चीज बचपन से हमें हमारे अंदर इनकलकेट की है कि रिजल्ट मैटर नहीं करते बट आप डेली कितना इनपुट अपने काम पे देते हो वो मैटर करता है मेरे पापा ने मतलब बचपन से एक डिसिप्लिन ओरिएंटेड बनाया हम लोगों को कि हर दिन एक शेड्यूल फॉलो करो डजेंट मैटर रिजल्ट
कैसा रहेगा, बट आप हर दिन अपना एक पर्टिकुलर शेड्यूल है उसे हर दिन फॉलो करो। तो मैम ये चीज मेरे पापा से मतलब मुझे लगता है कि मैंने बहुत सीखा है ये वाला चीज, कि डिसिप्लिन रहो, हार्ड वर्किंग रहो। ओके। सो आपके मतलब फादर का ये चॉइस था कि आप बैंकिंग सेक्टर में ही जाओ, ऐसा? नहीं मैम, ऐसा कुछ चॉइस उनका नहीं था, मैंने खुद से चूज किया कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है। ओके, मतलब उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं था कि आप इस सेक्टर को ज्वाइन करो, आप उस सेक्टर को ज्वाइन करो, ऐसा कुछ? नो मैम, नो मैम, उन्होंने हमें मतलब बचपन से खुद से फ्री चूज करने के लिए दिया है कि आपको जो अपने लिए प्रेफरेबल लगता है वो आप चूज करिए। ओके, ओके। सो यू आर टोटली डेडिकेटेड टू बी अ बैंकिंग ऑफिसर, राइट? ओके। सो ना मुझे आप 3 क्वालिटी बताओ, एक एक बैंक ऑफिसर का, जो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, ही इज़ अ गुड बैंक ऑफिसर। कुछ 3 क्वालिटीज़ मुझे बताइए। मैम फर्स्ट इज द लीडरशिप क्वालिटी। ओके, और मैम आई थिंक हैविंग अ पेशेंस एंड अ काम एटीट्यूड, एंड और मैम ट्रूथफुल। ट्रूथफुल इन विच वे? इन विच मैम मतलब बीइंग ट्रूथफुल मतलब अपना चीज को प्योरली दिखाओ, अगर हमारी मिस्टेक्स भी हैं तो उनको भी अच्छे से हैंडल करो, डील करो। और मैम अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं अच्छे तरीके से। तो मैम अपना ऑनेस्टी रखना जॉब में मैम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। तो अगर आपके, मान लो कि अगेंस्ट अ सिचुएशन, अगर आपके बैंक आप बैंक जॉब कर रहे हो और आपको कोई मतलब लोन पास करने के लिए आपको मान लो क्रेडिट डिपार्टमेंट दे दिया गया, ठीक है? आपको कोई लोन पास करवाने के लिए आपको बोल रहे हैं थोड़ा साइड में, आपके कोई जान पहचान के हैं और आपको बोल रहे हैं कि ये लोन मेरा पास करा दो। आपके पास और भी बहुत सारे फाइल्स हैं, बट आपको वो बोल रहे हैं कि आप तो मेरे फैमिली मेम्बर हो, आप मेरा करा सकते हो जल्दी। तो इन डैट केस आप क्या करोगे? मैम मैं पहले ऐसे ऐसे फैमिली मेंबर के लिए ऐसे कोई प्रेफरेंस नहीं रखूंगी, वहाँ मैं पब्लिक डीलिंग कर रही हूँ और मेरे लिए सब बराबर है वहाँ पे। और मैम मैं पहले उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक करूंगी कि इनके कोई एनपीए के चांसेस ना हो और इनके पास प्रॉपर हर चीज वो है, प्रॉपर वे में है। तो मैम मैं उसी अकॉर्डिंग उन्हें कंसीडर करूंगी, जस्ट बिकॉज वो मेरे रिलेटिव है, तो ऐसा कोई ओवर इम्पोर्टेंस उन्हें नहीं दूंगी, ओके, बिकॉज उस टाइम मैं जब करती हूँ तो मेरे लिए सब इक्वल है। ओके। So Sonam, tell me about something PSL. You know about PSL? यस मैम, पीएसएल स्टैंड फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स। तो मैम अपने हर कमर्शियल बैंक हो, आरआरबीज हो, कोई भी बैंक हो, तो उन्हें अपने एएनबीसी का एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का कुछ परसेंटेज शेयर जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करनी पड़ती है आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। Okay. So why this is introduced, PSL? मैम फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि मैम रूरल बैंक्स या जो रूरल जगहें हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, जिन लोगों को इतना मतलब नहीं जैसे अनब्रांच्ड एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, जहाँ पे इतनी सर्विसेज बैंकिंग की नहीं पहुंच पाती है, और मैम कोई वीकर सेक्शन के लोग हैं जिन्हें बैंकिंग की नीड है, तो उनके लिए इंट्रोड्यूस की गई थी ये, ताकि इन सबको इंक्लूड करा जा सके बैंकिंग सेक्टर में और इन सबको उसके फायदे दिए जा सके। Okay. ये मुझे आप बताइए कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होते हैं उनके लिए कितना परसेंटेज है PSL में? मैम स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो रहते हैं उनका मैम जो आरआरबीज के अंडर आते हैं ना मैम, 60% शेयर है, उसमें भी उनका आगे कंट्रीब्यूशन रहता है कि 18% जो है एग्रीकल्चर लैंड के लिए होना चाहिए, 7.5 जो है एमएसएमईज के लिए होना चाहिए, 2.5 जो है अदर्स के लिए होना चाहिए, और 12% जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए होना चाहिए। ओके, एग्रीकल्चर के लिए कितना बताया आपने? 18%। 18%। तो उसी में 18% में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशन अलग से भी है, वो परसेंटेज बता सकते हैं? तो मैम वो नहीं पता मैम। ओके, ठीक है। आप ये बताइए अभी व्हाट इज़ द करंट जीडीपी ग्रोथ रेट इन आवर इंडिया? मैम नहीं पता। ओके, मतलब जीडीपी के बारे में पता है कि क्या होता है जीडीपी? मैम फुल फॉर्म पता है कि ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट होता है मैम, थोड़ा बहुत ही नॉलेज है, इतना प्रिसाइज नहीं है। ओके, ठीक है। सोनम, आप मुझे ये बताइए कि आपका ओपिनियन क्या है फॉर द बैंक मर्जर, जो अभी रिसेंट न्यूज़ आ रहा है बैंक मर्जर का, क्या आपका ओपिनियन है? कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस मुझे बताइए। मैम बैंक मर्जर्स का एडवांटेजेस ये है कि मैम जब बैंक मर्ज होंगे तो
तो हमें अच्छी बैंकिंग फैसिलिटीज मिलेंगी, हमारे पास ज्यादा कैपिटल होगा लेंड करने के लिए लोगों के लिए, और हम अच्छी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। तो मैम मर्जर के बेनिफिट्स बहुत है कि हमारे पास ज्यादा कैपिटल होगा, हम ज्यादा लोगों को लोन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम अपनी सर्विसेज को और अच्छे से दे सकते हैं। और मैम डिसएडवांटेजेस तो ऐसा जितने कोई मेजर नहीं है। डिसएडवांटेज मतलब कुछ तो ऐसा होगा ना कि जिससे लग रहा है कि कुछ निगेटिविटी भी जा रही है इस मर्जर की वजह से, एनीथिंग? मे बी मैम मैम ब्रांचेस कहीं कहीं जगह मे बी बंद हो जाए या अच्छी सर्विसेज ना प्रोवाइड हो पाए। ओके, मतलब इसमें रिक्रूटमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एनी इम्पैक्ट ऑन रिक्रूटमेंट? लेस रिक्रूटमेंट होगी मैम, मे बी। लेस रिक्रूटमेंट होगी, क्यों? मैम सॉरी मैम। ओके, इट्स ओके, कोई नहीं। आप बताइए, व्हाट विल बी योर कंट्रीब्यूशन इन द इम्प्रूविंग द बैंकिंग बिजनेस? Ma'am, I will do my work properly. I will help in providing loan to the people. और मैम I will try to help people और to मैम ज़्यादा लोन देने में हेल्प करवा पाऊंगी। जिन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है उनको नॉलेज प्रोवाइड करवाऊंगी कि अभी रिसेंट ये चीज़ आई है, आप इस चीज़ से कर सकते हैं, आपको इससे ये बेनिफिट होगा। तो मैम मैं लोगों को अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश करूंगी कि ये अभी नया रिसेंट कुछ है तो आपको इससे फ़ायदा होगा। ओके, ठीक है। सो हैव यू एवर यूज्ड चैट जीपीटी? यस मैम। व्हाट इज दैट चैट जीपीटी? चैट जीपीटी जो होता है हमारा, जो भी हम जैसे हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक साथ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म की हमें इन्फॉर्मेशन एक एज अ मर्जर फॉर्म करके हमें एक पूरा चार्ट बना के दे देता है कि मतलब अलग अलग जगह की इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके हमें प्रोवाइड करता है। ओके, वो कैसे वर्क करती है? मैम Software. Okay. There is something name of that software, or it's just a chat GPT software? मैम मे बी सम नेम तो होगा ही मैम कोई, बट आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। ओके, ठीक है। आपने मुझे मर्जर के बारे में तो बताया कि कुछ एडवांटेजेस इसके हैं। आप मुझे कुछ रीसेंट मर्जर के बारे में बताइए कि जो अभी हुआ है, मतलब आई कैन से इन विद इन 10 years, लास्ट 10 years में जो मर्जर हुए हैं मुझे वो बताइए, किसका किस में मर्ज हुआ है? लास्ट 10 years एक दो भी मैम। एग्जाम्पल। मैम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। ओके, ठीक है। आपका मतलब होम प्लेस, मतलब आप बचपन से कहाँ रहे हो? मैम जब हम छोटे थे तब तो पापा की जहाँ पोस्टिंग होती थी हम वहाँ रहते थे, बट आफ्टर 5th 6th हम लोग ऋषिकेश अपने होम टाउन में ही आ गए थे, तो हमने यहीं पे रहे उसके बाद। अच्छा, कुछ फेमस प्लेसेस बताइए ऋषिकेश में, क्या क्या है? मैम राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, और सबसे फेमस मैम गंगा आरती है। ओके, गंगा आरती है, ठीक है, ठीक है। और कुछ वहाँ के, मतलब जैसे आप उत्तराखंड के हो बेसिकली, तो उत्तराखंड के कुछ स्कीम्स बताइए जो कि उत्तराखंड के ही पर्सन या फिर वहाँ के सिटीजन्स के लिए है। कुछ उत्तराखंड में कुछ ऐसा होता होगा ना, वहाँ के सीएम ने लाया हो उनके लिए स्पेशली, वो सब। मैम सॉरी नहीं पता। ओके, मतलब आप अपने प्लेस के बारे में नहीं जान रहे हो? ओके, मैम आई विल लर्न अबाउट इट। ओके, ओके, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, बियरर चेक और ऑर्डर चेक में क्या डिफरेंस है? मैम बेयरर चेक और ऑर्डर चेक में ये होता है कि बेयरर चेक जो भी इंसान का नेम उस चेक में रिटर्न है, और या तो जो भी इंसान उस चेक को कैरी कर रहा है वो जाके अपना कैश जो है वो कैश काउंटर से कैश ले सकता है। और ऑर्डर चेक में ये होता है कि जिसका कैश चेक में नाम है ओनली सिर्फ वही कैश काउंटर में कैश ले सकता है। ओके, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको बाहर में कोई क्रॉस चेक मिल गया है, ठीक है, बाहर में किसी का, तो क्या आप वो कोई भी अगर सिटी कोई भी इंसान लेके जाएगा तो वो क्या बैंक उसको दे देगी पैसे? नो नो मैम, नहीं देगी? नो मैम, क्रॉस चेक में अकाउंट में ट्रांसफर होता है ना मनी, तो मैम ऐसे नहीं मिल सकता। अच्छा, नहीं मिल सकता है, ठीक है। यस मैम।
अपने अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड जो आपका फिजिक्स है, उसमें क्या क्या पढ़ा था? मैम फिजिक्स में हमने बहुत सारी चीजें मैम, फिजिक्स में तो जैसे ग्रेविटेशनल हो गया, ग्रेविटेशनल लॉ हो गए, न्यूटन्स लॉ हो गए मैम, आई डिफेक्ट्स हो गए, बहुत सारी चीजें मैम फिजिक्स तो, ओके, लेंसेज। यस मैम। ठीक है। न्यूटन्स लॉ के बारे में बताइए, क्या है न्यूटन्स लॉ? मैम न्यूटन के तीन लॉ हैं। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट अंटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। और मैम सेकेंड लॉ है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड थर्ड लॉ इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, ठीक है। सो आपका मतलब इंटरेस्ट फिजिक्स से बैंकिंग सेक्टर में कैसे चला गया? मतलब इट्स टोटली डिफरेंट फील्ड। यस मैम। मैम एक्चुअली मुझे एक स्टेबल जॉब चाहिए थी, तो मैम बैंकिंग इंडस्ट्री एक मतलब सिक्स मंथ में रिक्रूटमेंट प्रोसेस होके आपको जल्दी से अपना जॉब मिल सकता है। तो ये चीज बैंकिंग में बहुत ट्रांसपेरेंट वे में काम होता है, बहुत जल्दी जल्दी तुम अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा करके आप अपना जॉब ले सकते हो। तो स्टार्टिंग में तो मैम मुझे इसी चीज ने अट्रैक्ट किया बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ। तो मैम ये एक सबसे बड़ा रीजन यही है। और मैम उसमें पब्लिक डीलिंग का काम होता है, लोगों से मिलने का, नई नई चीजें सीखने का एक वो एनवायरनमेंट है, तो इसलिए मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री अच्छी लगती है। अच्छा, ठीक है। ये 6 मंथ तो जल्दी रिक्रूटमेंट कर देती है, बट आपको तो 5 ईयर लग गया अभी तक टाइम। इतना दिन में तो आपका प्लेसमेंट हो जाता कॉलेज से। हाँ यस मैम ये है, बट आई हैव गिवन एग्जाम्स। तो मैम मैंने जितनी भी बार जो भी मेरी कमियां थी उस पर काम किया और मैंने उस पर वर्क किया, तो इसलिए फिर मैं आज इंटरव्यू भी दे पाई हूँ। ओके, ठीक है। ओके, इसके अलावा आपका मतलब आईपीएस पीओ के अलावा और क्या क्या अभी एग्ज़ाम अभी है कि आपके शेड्यूल में है? मैम अभी तो मैंने ऑलरेडी एसबीआई क्लर्क मेंस भी दे रखा है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस भी दे रखा है, एनआईसीएल एओ मेंस भी दे रखा है। और मैम अभी ओआईसीएल की रिक्रूटमेंट आई है, तो वो भी मैं फिल करूंगी। Okay, so if you got the chance to be selected in NISCL AO, then what will you choose, IPS PO or NISCL AO? मैम आई विल चूज आईबीपीएस पीओ, Why? बिकॉज मैम अच्छी इंडस्ट्री है। मेरे फ्रेंड्स लोग भी काफी लोग जॉब कर रहे हैं इसी सेम आईबीपीएस पीओ की पोस्ट में, एंड उनको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट लगता है वहाँ पे। तो मैम मैंने उनसे बहुत सारे इनपुट्स लिए हैं, तो उनकी काफी अच्छी फीडबैक था कि अच्छा एनवायरनमेंट है, आपको अच्छा करियर ग्रोथ है। तो मैम इसलिए आई विल चूज आईबीपीएस पीओ। ओके, ठीक है। तो NISCL तो मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ वहाँ पे NISL इंश्योरेंस का काम होता है। वहाँ पे इतना बैंक जैसा प्रेशर नहीं है जितना हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में है। तो ये चीज़ चूज़ करना थोड़ा नहीं लग रहा है कि NISL इज़ बेटर? मैम हो सकता है बेटर हो, बट मुझे आईबीपीएस पीओ में ही इंटरेस्ट है। ओके, ठीक है। कुछ मुझे अपना लाइक कुछ अपने वीकनेस के बारे में बताइए कि एनी ऑफ योर वीकनेस कि आप क्या है जो कि आपको प्रॉब्लम देती है एंड ऑल। मैम मेरी एक सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि मैं बहुत ज्यादा इनपुट दे देती हूँ किसी चीज में। कभी कभी इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं होता, बट मैं फिर भी बहुत ज्यादा मतलब अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ चीजों को। तो मैम आई थिंक मेरे को लगता है ये मेरी एक थोड़ा वीकनेस है, इस पे मुझे वर्क करना चाहिए, क्योंकि हर जगह इतना इनपुट देने की नीड नहीं होती है। ओके, इनपुट इन विच वे? मैम इन एनी वे, कभी कभी कोई भी काम, जैसे मुझे कोई आपने कोई काम दे दिया, मेरी किसी फ्रेंड ने कोई काम दे दिया, तो मैम मैं उसमें अपना 100% करने की कोशिश करूंगी। मैं अपने सारे सोर्सेस का यूज करने की कोशिश करूंगी कि मैं वो काम को कर पाऊँ। तो मैम मुझे लगता है कि हमेशा हर किसी के लिए अपना पूरा 100% डेडिकेट नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। ओके सोना, योर मॉक इंटरव्यू इज़ ओवर। अब मुझे ये बताइए, मैं तो ऐसे आपको फीडबैक और टिप्स तो दूंगी, ऐसा नहीं है, सब कुछ बताऊंगी। बट आप मुझे बताइए आपको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ अभी तक, मतलब इस 20 मिनट 21 मिनट के जो इंटरव्यू हुए उसमें कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुआ? मैम एक जो आपने क्वेश्चन पूछा कि वो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स का, मैम वो मुझे अपडेट करने का नीड है। और मैम आपने 2-3 क्वेश्चन पूछे, मैं उनको आंसर नहीं कर पाई। वो मुझे लगा, जैसे आपने मुझे ऋषिकेश से रिलेटेड पूछा कि आपने कि यहाँ कोई नई स्कीम आई है, तो मैम मुझे लगता है मुझे उससे अपडेट करना चाहिए, उसके उसके रिगार्डिंग खुद को अपडेट करने की नीड है मुझे। ओके, एनीथिंग एल्स जो चीज़ आपको अच्छा लगा अपने इंटरव्यू में? मैम मेरा मतलब मेरी तरफ से क्या अच्छा है, पता नहीं मैम, मुझे लग रहा है थोड़ा शिवर कर रही हूँ, घबरा रही हूँ मे बी। मैंने इतना अच्छा से नहीं जवाब दे पाई, मुझे लग रहा है।
अच्छा। और अच्छा दे सकूँ मैं। ठीक है। हाँ। ओके, आपका कब इंटरव्यू है सोनम? 22 को शेड्यूल्ड है। 22 को शेड्यूल्ड है। ठीक है। अब मैं अपने साइड से आपको बताती हूँ कि मुझे क्या सही लगा, क्या गलत लगा, सारा कुछ फीडबैक जैसे मैंने स्टार्टिंग से नोट किया। सबसे पहले यस मैम। सोनम, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ना इलोंगेट कीजिए। जैसे मैं यस आपसे मैम। इंट्रोडक्शन पूछ रही हूँ ना कुछ भी कि अपना इंट्रोड्यूस कीजिए, तो आप बहुत शॉर्ट वे में ख़त्म कर रहे हो। मतलब लाइक माय नेम ये है, माय फादर इज़ डूइंग ये, सिबलिंग इतने हैं। मतलब थोड़ा सा इलोंगेट आप कर सकते हो कि प्लेस के बारे में बोला, मतलब पूरा डिस्क्राइब नहीं करना है, बट प्लेस के बारे में बोला, फिर फादर्स क्या करते हैं, आपका स्टडीज़ कहाँ से हुआ था, रिसेंट स्टडी जो ग्रेजुएशन आपने किया, कौन सा प्लेस से किया, ये सब थोड़ा इलोंगेट करके करोगे ना तो कम से कम 1 से 1.5 मिनट एटलीस्ट जाना चाहिए इंट्रोडक्शन। जैसे मैम इसमें अपने बारे में थोड़ा बहुत मतलब अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बोल दें कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ और ये सब कर सकते हैं ऐड यू ऑन कैन ऐड लास्ट में। ऑन, हाँ, वीकनेस वगैरह मत ऐड करना, बट स्ट्रेंथ आप ऐड कर सकते हो एक लाइन की, हाँ मेरा स्ट्रेंथ ये है। नॉर्मली आप अगर अपने बारे में, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड, फादर के बारे में, आपकी मदर क्या करती हैं, आपके सिबलिंग्स क्या हैं, इतना भी बता दोगे ना तो आपका 1 मिनट चला जाएगा। स्ट्रेंथ भले ओके ही ना मैम। बताओ, लेकिन बता दोगे तो कोई नहीं है, अच्छा है, प्लस पॉइंट ही है, अच्छा लगेगा सुनने में। बट बहुत शॉर्ट मत जाना एकदम कि तुरंत आए और तुरंत ख़त्म हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं ओके वेट मैम। कर रही थी आपका कि आप कुछ और ऐड ऑन करोगे। ठीक है। सेकंड ओके वन मैम। इज़ PSL का आंसर मेरे को अच्छा लगा। ठीक है, आपने